बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असेंबली हलके में एसडीपीआई की शानदार रैली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार भास्कर प्रसाद ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। आज 19 अप्रैल बरोज बुध भास्कर प्रसाद ने एसडीपीआई के लीडरों के साथ अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। इसके बाद एक बड़ी रैली के जरिए लोगों के दरमियान पहुंचे भास्कर प्रसाद एक दलित लीडर हैं, बेबाक लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर पुलकेशी नगर से इंतखाब लड़ रहे हैं। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई ने भी पुलकेशी नगर असेंबली हलके में एसडीपीआई की तायद का ऐलान किया है। एसडीपीआई के लीडरों ने कहा कि इस मर्तबा पुलकेशी नगर में भास्कर प्रसाद की जीत यकीनी है। जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ। ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೈಟು। ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ। ನೇರ ಫೈಟು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮತಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಡಿಪಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಡಿಪಿ ಕೈ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ। ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ। ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಿದೆ? ಏನು ಪ್ರಭಾವನೂ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ। ಯಾರು ಸರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ? ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು। ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ JDS ಆಗಲಿ BJP ಆಗಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸು। ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇಡ ಸರ್। ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ SDPI ಅಂತ। ಸೊ SDPI ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ। ಈ ಸರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ। ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, SDPI ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು। ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು। ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ BJP ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪಾರ್ಟಿ। ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ। ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ। ಯಾರೋ ಏನೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತು, ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ। क्या इम्कानात क्या हैं आपके? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं और नॉमिनेशन आज फाइल किए हैं, लेकिन पार्टी 14 साल से इन इलाकों में हम काम कर रहे हैं। हम ज़मीनी सतह पर उतर कर काम कर रहे हैं, हम हवा पे काम नहीं कर रहे हैं। इसी उम्मीद से हम आए हैं कि ज़मीनी सतह से काम किए हैं, लोगों के मसाइल जानते हैं, लोगों के मसाइल के अंदर हम मुदाखलत किए हैं। हर मसले में हम नीचे ज़मीन पे उतर कर एहतजाज की शक्ल में और कोई क़ानूनी लड़ाई की शक्ल में कर हम करते रहे। तो लोग कह रहे हैं कि जब आप सड़क पे उठकर आवाज़ उठा रहे हैं तो आप विधानसभा के अंदर जाकर आपको उड़ाना चाहिए। यही लोगों की उम्मीद है, लोगों की ख्वाहिश है कि आप जैसे लोग विधानसभा के अंदर जाना है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर हर चीज़ की रोकथाम भी हो सकती है और अच्छे हमारे लिए हमारे इलाके की फलाह बहबूदी के लिए काम, ये लोगों की ख्वाहिश तमन्ना है। अब वो सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जब भी आसमानी आफतें होती हैं, SDPI हो या उसके वर्कर्स हो जो ज़मीनी सतह से लोगों की खिदमत करते हैं, एक कसीर तादाद में जो है SDPI का मजमा नज़र आता है। इलेक्शन के दौरान वो मजमा क्यों नज़र नहीं आता? देखिए इलेक्शन के दौर में ये सारी जितने भी पार्टियां हैं ये रुश्वत की पार्टियां हैं। पहले टिकट ही रुश्वत दे के आते हैं, तो आके करीब फुसलाते हैं लोगों को, आके वो पैसों से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो जान चुके हैं, बहुत साल 60 साल से चलता रहा और पिछले 10 साल से हमारे इस इलाके के अंदर क्या तरक्की हुई, क्या फलाह बहबूदी का काम हुआ नहीं मालूम। अब लोग खुद जान चुके हैं कि इनके मैयत उठाने के लिए
कोविड की दफनाने के लिए, खून देने के लिए, उनको राशन देने के लिए, उनकी कानूनी लड़ाई के लिए, उनके कोई थाने का पुलिस का मामला हो तो उसके लिए हर मसाइल में हम लोग जो जाकर हम नीचे की सतह पे काम करें, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, जो हम काम करें। अब उन लोगों को पता एहसास हो चुका है कि यही हकीकी लोग हैं, यही सच्चे लोग हैं जो हमारे हर दुख दर्द को समझने वाले। तो इस उम्मीद से वही कह रहे हैं कि उन्हीं की ख्वाहिश है कि आप ही लोग आना चाहिए। तो इस उम्मीद से कि हमारा जो काम किए हैं और उसकी बुनियाद पर आप लोगों की ताउन के साथ, लोगों के मशवरों के साथ, हर वोटर्स के मोहब्बत और प्यार और खुलूस और उनके वोट की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी तादाद में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। My name is Dr. N. Murthy, National President of Republican Party of India. You are supporting to Bhaskar Prasad is contesting Pulkeshi Nagar. Why, sir? Why you are supporting Bhaskar Prasad? Bhaskar Prasad is a very good social worker, and also he is a very good politician also. That is why you are supporting him. So, any condition you have put? No conditions. Unconditional, unanimously support to you. So, how many workers are of your party are here in Pulkeshi Nagar? So many Any power, presence? so many workers is here in Pulkeshi Nagar. They will work for Bhaskar Prasad. Yes, support to the Bhaskar Prasad. We are with you. Since the last 73 years, the various political parties which has been in the power in both state and center, you know how they have failed the constitution and they failed the people, and they failed to keep up the people's aspirations. And now it's a time for where there is an alternative. There is a vacuum for the alternative politics both in the state as well as in the nation. Especially in Karnataka, there is a huge vacuum for the alternative politics, especially the depressed classes like the Muslims, Dalits and the other backward classes. I think now the SDP has become the voice of these particular sections of society, and especially in the Pulkeshi Nagar, our brother Bhaskar Prasad is contesting as an MLA candidate, and there is a huge support from the various sections of society in Pulkeshi Nagar, and there is a 100% guarantee that this year is going to win, and probably we hope that 5 to 6 seats, MLAs will be entering into the assembly this time through the SDPI. Okay. And this is going to be the new hope to the whole state for the alternative politics. So I wish all the best for the SDP as well as Bhaskar Prasad. Thank you. मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह BR भास्कर प्रसाद साहब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे। यही उम्मीद के साथ जो भी हमारे साथ पिछले हादसात हुए, चाहे वो डेवलपमेंट की शक्ल में जो हमारे साथ एक धोखेबाजी हुई या फिर डीजे हल्ली केजे हल्ली जैसे गलाटों में जो हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई, ये बुनियाद को जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी आवाज़ बनाकर दलित और मुसलमानों के असम्बली में BR भास्कर प्रसाद साहब को भेजने की पुलिकेशी नगर असम्बली के एक फ़र्द की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में जो 10 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं उसमें मैं तमाम से एक दिली गुजारिश करता हूँ कि सही मायने में एक सेक्युलर सोच रखने वाला, एक सेक्युलर ख्याल रखने वाला शख्सियत जो है BR भास्कर प्रसाद साहब हमारे मुद्दों पर बात करेंगे। अब तक एहतजाज की शक्ल में असम्बली के बाहर बात करते थे, इंशाल्लाह एक उम्मीदवार एक MLA बनकर हमारे मुद्दों के ऊपर असम्बली के अंदर एक टेबल के ऊपर जो है ठोक कर हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे बोलकर एक उम्मीद के साथ हम लोग आज नॉमिनेशन किए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका कीमती वोट बग़ैर किसी सोच के जो है एक हक़ की गवाही जो वोट रखता है तो उस हक़ की गवाही को एक सही लीडर को देकर कामयाब करें। लोगों का जो है ये मानना है कि SDPI जहाँ करती है वहाँ से जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचता है। क्या पुलकेशी नगर में भी ऐसे हालात हैं? सर अगरचे पिछले बार रही बात पहले तो बीजेपी का, देखिए वो एक ट्रेंड पहले था कि कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी बोलकर, वो कोई भी पार्टी होकर के। मगर इस बार का ट्रेंड कैसा है, इस बार अगरचे कांग्रेस को वोट देंगे तो 100% बीजेपी आएगी। क्यों बोले तो 2018 के इलेक्शंस में पूरे सेक्युलर जहनियत रखने वाले अपना वोट जो है फिस्ताई ताकत को दूर रखना बोलकर जो वोट दिए, तो उसके बाद क्या हुआ आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। 12 MLAs कांग्रेस के, फिर 2 MLAs JDS के जाकर आज कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट आने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो इस बार के इलेक्शन में अगरचे कांग्रेस को वोट दिए तो 100% बीजेपी आ जाएगी। और रही बात पुलिकेशी नगर की, अब पिछले 15 साल 20 साल का अगरचे डेटा उठाकर देखेंगे बीजेपी कहीं पर भी 5 से 8 हज़ार के ऊपर वोट यहाँ पर लेकर नहीं है। तो पुलिकेशी नगर में किसी भी
कारण से किसी भी रीज़न से बीजेपी आने के चांसेस नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब इलेक्शन की गर्मी शुरू होने के बाद आप लोगों के सामने एक मुसलमानों की प्रेशर ग्रुप कर अपने आप को एक इस्लामिक हुलिया डालकर जो है आपके सामने आएंगे। एक डाइवर्शन की पॉलिटिक्स आप लोगों के सामने करेंगे। इन लोगों को आपको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ एचडीपीआई को इंशाल्लाह पुलकेशी नगर में वोट देना है बोलकर एक अपील आप लोगों से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। लाइट बना लो, अपने अपने गाड़ियों में चले जाओ। ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. जरा शुरू कर जगह बना दो कैंडिडेट जरा सामने से शुरू ಪಕ್ಷ ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬದಿಪಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತಗಳಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರತ್ತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ.